Hello, students. Welcome to this geography series where we are covering all the important topics that are frequently asked in various exams, mainly UPSC. We are going to cover our entire geography one by one. So, get your seat belts. And I would like to tell you that this class is going to be very interesting and I hope you will find it informative. And yes, please do let me know if any one of you have any doubt or any topic, right? So today we are going to start our third lecture, that is volcanoes and volcanic landforms, right? So to understand volcanoes and volcanic landforms, we have to get some basics. As discussed in the last class, we will again talk about thermal convective current theory. This theory was given by Arthur Ohms, and according to the theory, जो हमारा क्रस्ट है और जो हमारा कोर है नीचे, कोर के अंदर एज वी नो दैट यहाँ पर रेडियो एक्टिव डीके कंटिन्यू हो रहा है और जिसकी वजह से कोर हमारा काफ़ी गर्म होता है. टेम्परेचर हियर रीचेस नियरली अप टू 5000 डिग्री सेल्सियस. So due to having such high temperature is so high here that there are several zones also known as hotspot zones. These hotspot zones are the zones from where the convective currents are rising above, and these currents rise above in the mantle and deflect to the to all the directions. Basically, this is the image in 2D, so we can't find it how they are deflecting, but in real these convective currents deflect in all directions, mainly in the asthenosphere. This zone is asthenosphere. So in this weak zone asthenosphere, these currents are moving in many other directions, right? So these are moving in all the directions, and due to these movements only we are getting earthquakes. We are about to see various types of landforms formed on the surface of earth, right? Various type of mountains, both block and fault mountains. Many various types of valleys like rift valleys also formed mainly due to this convection current only. So this was the basic understanding about convection current, and now we will talk about how many types of convection currents are there. Basically, over the surface of earth, actually not over, it is below the surface of earth, the two types of convective currents are there. The first one is diverging currents. Diverging, as the name suggests, these currents rise up till the asthenosphere and they diverge away from each other. Similarly, the second current is converging currents. These converging currents, by the name, they are rising in the mantle, getting to the asthenosphere, and they are converging like this. This we can also see it from this image, like this is diverging current, right? And this is converging currents. Actually, what happens that when these waves rise up, right? So after getting up above the up near the surface, these waves are getting less hot, right? So it is so hot here, but when it comes here it gets cooled down. Due to the cooling only, these are again going back to their original spot where they are again heated up and again they are moving like this, right? So this makes a whole cycle, and this cycle is only known as convection circulation. So डाइवर्जिंग करंट्स के अंदर हम देखते हैं कि डाइवर्जिंग करंट्स में बेसिकली कौन सा फोर्स लग रहा है, तो ये टेंशनल फोर्स लग रहा है. एज वी नो, टेंशनल फोर्स आर व्हेन टू बॉडीज आर स्ट्रेच्ड लाइक दिस, टेंशन जनरेट्स हियर, एंड दिस इज द रीजन व्हाई diverging currents are always tensional force. So as you can see here, that then this is the slab of lithosphere, right? So in the lithosphere, when these currents are rising up, they diverge here, and due to the divergence, a fault develops here, right? A fault develops here, and this fault builds up various types of landforms over the surface of earth. So as the time passes, this fault line is widened, and from this fault line
a silent type of volcanic eruption happens. Why silent? Because the faults are widening very slowly. We can't even wait and see them. They are rising very slowly, and when they widen up, their volcanic eruptions, like the lava comes out from the volcanoes or lava comes out from the surface, and that lava builds up mountains and plateaus. So the volcano here are so silent that it happens almost frequently and at all the times. होता ये है ना कि जो हमारा अर्थक्वेक जो हम मेज़र करते हैं, अर्थक्वेक मेजरिंग डिवाइस के अंदर ना 5 से कम मैग्नीट्यूड के जो अर्थक्वेक होते हैं वो बहुत ही वीक अर्थक्वेक माने जाते हैं और वो फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं। लेकिन 5 से ज़्यादा मैग्नीट्यूड के जो अर्थक्वेक होते हैं सेस्मोग्राफ में वो काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं और उनसे डिस्ट्रक्शन का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो जैसा कि हमने देखा ये फॉल्ट लाइन यहाँ पे डेवलप कर जाएगा, कन्वेक्टिव करंट, फॉल्ट लाइन धीरे धीरे चौड़ा होता जाएगा, दे गेट्स वाइडन, और वाइडन होने के बाद में ये वाला जो देखिए पहले तो क्या होगा, ऊपर आएगा लावा जो भी होगा वो ऊपर तक पहुंच जाएगा, यहाँ पे लावा बिल्डअप होगा। लावा के बिल्डअप होने के कारण क्या होगा, ये लावा वापस अपने वजन को सह नहीं पाएगा और नीचे गिर जाएगा। और जब अपने वजन को लेकर के नीचे गिर जाता है, लाइक सबडक्शन ऑफ मिडिल कॉलम, देन रिफ्ट वैली आर प्रोमिनेंट ऑन द लैंडफॉर्म। रिफ्ट वैली का एग्जांपल है नर्मदा रिफ्ट वैली, तापी रिफ्ट वैली, राइन रिफ्ट वैली भी एक रिफ्ट वैली है जो कि बहुत ही फेमस है। दिस इज़ मेनली बिकॉज ऑफ सबडक्शन ऑफ द मिडिल कॉलम। यहाँ पर वेट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है वोल्केनो के कारण, राइट, तो ये सबडक्ट कर जाता है नीचे की ओर। अगर यही सबडक्शन बहुत कम होता है तो वो रैंप वैली बनाता है। सो रिफ्ट और रैंप वैली के बीच में मेन डिफरेंस यही है कि जो सबडक्शन जोन हो जाता है यहाँ पे मिडिल में सबडक्शन जोन, मिडिल कॉलम सबडक्ट कर जाता है नीचे की ओर, वेयर इस रैंप वैली के अंदर ये जो सबडक्शन जोन है ये काफ़ी कम होता है और ये साइड से ज़्यादा उड़ जाते हैं ये। ठीक, तो वैली ना ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा लेकिन साइड वाले ऊपर उड़ जाते हैं। बेसिकली साइड वाले ऊपर उड़ जाते हैं और यहाँ पर यही नीचे गिर जाता है। ये वाला ब्लॉक जस का तस वैसा का वैसा रहेगा और यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है ये इसको नैरो करता जाता है नीचे की ओर। ठीक, तो ये रहा तो हमारा रिफ्ट वैली। और इसे डिटेल में हम एक बार समझेंगे और अभी ब्लॉक माउंटेन्स पढ़ेंगे। तो अभी आप बस जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए डाइवर्जिंग करंट और कन्वर्जिंग करंट्स को अच्छे से देख लीजिए। तो सेकेंड हमारा है कन्वर्जिंग करंट्स। कन्वर्जिंग करंट्स में बेसिकली क्या होता है ना, दोनों साइड से करंट्स ऊपर मूव हो रही हैं और करंट्स एक दूसरे से आकर के यहाँ पर टकराती हैं और बेसिकली उसके बाद होता है क्या है, ये करंट्स वापस से नीचे चली जाती हैं। ठीक है, और ये फिर इस तरह से यहाँ पर कोर है आपका, तो यहाँ पर कोर पे इन्हें गर्मी मिलता है और गर्मी मिलने के कारण फिर से ये इधर मुड़ जाती हैं और ये राइज करना चालू कर देती है ऊपर। ठीक है, ऐसे राइज करना, तो ये एक साइकिल बन जाता है। यहाँ पे होता है क्या है ना, अगर आप एक पीस ऑफ पेपर लेते हैं, राइट, एक पीस ऑफ पेपर लीजिए आप और इसे दोनों साइड से ना प्रेस करिए, कंप्रेस करिए, तो यहाँ पे हमें टेंशन फोर्स नहीं लगाना है, यहाँ पे कंप्रेशनल फोर्स लगाना है। जब आप इसे कंप्रेस करेंगे दोनों साइड से बहुत तेज धीरे धीरे करके फोर्स लगाएंगे तो आप थोड़ी देर बाद पाएंगे कि ये ऐसा मुड़ जाएगा कुछ, सॉरी, ये कुछ इस तरह से मुड़ जाएगा। ये मुड़ना इज नथिंग बट दीज आर द फोल्ड माउंटेन्स। इसी तरह से फोल्ड माउंटेन्स जो होते हैं, जो बड़े बड़े फोल्ड माउंटेन्स है जैसे कि हिमालयास हो गया, एल्प्स हो गया, ठीक है, रॉकीज हो गए, ये सारे फोल्ड माउंटेन्स है। और फोल्ड होने का मेन रीज़न क्या है कि ये इधर साइड से और इधर साइड से जो ऊपर करंट उठ रहे हैं, जो कन्वर्जेंट करंट उठ रहे हैं, ये एक ब्लॉक के ऊपर ना अपना दोनों साइड से फोर्स लगाते हैं और ये कुछ इस तरह से मुड़ जाता है। और इसी मुड़े हुए चीज़ को, जो ऊपर का जो पोर्शन होता है, इसे हम ज्योग्राफी में एंटिक लाइन कहते हैं, एंटिक लाइन। और ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है जो, इसे हम सिंक लाइन्स कहते हैं। ठीक, एंड दीज एंटिक लाइन, सिंक लाइन, एंटिक लाइन, दीज आर ओनली नोन एज फोल्ड माउंटेन, राइट। तो ये चीज़ दिमाग में रहेगा, ये फोल्ड हुआ है क्यों, क्योंकि कंप्रेशनल फोर्स लगा है यहाँ पर, और टेंशनल फोर्स लगने के कारण क्या बनते हैं, रिफ्ट वैली बनते हैं हमारे, राइट। सो ये तो रहा हमारा कन्वर्जिंग करंट। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फोल्ड माउंटेन्स के ऊपर। टाइप्स ऑफ फोल्ड माउंटेन्स, मेनली फोल्ड माउंटेन्स की जब हम बात करते हैं तो फोल्ड माउंटेन्स जैसा कि मैंने आपको बताया, एक है हिमालयास, एक हो गया रॉकीज जो यूएसए में है,
एक हो गया एंडीज जो आपका साउथ अमेरिका में चिली के पास पाया जाता है, और एक है एल्प्स। ठीक है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट 6 टाइप्स के होते हैं बेसिकली फोल्ड माउंटेन, जिसमें पहला है सिमेट्रिकल फोल्ड। सिमेट्रिकल फोल्ड इज नथिंग बट जब दोनों साइड से बराबर के फोर्स लगते हैं ना कन्वर्जन करंट के, दोनों साइड से एक बराबर का फोर्स अगर लग रहा है तो ये दोनों एक बराबर फोर्स क्या करेंगे, माउंटेन को एक सिमेट्री में उठाएंगे। सिमेट्री का मतलब ये होता है जब हम इसको बीच से काटेंगे तो जितना पोर्शन जैसा इधर का दिखता है वैसा ही पोर्शन इधर का दिखता है। हालांकि इस दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमें पाया गया है कि हिंदू कुश माउंटेन जो है आपका, जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उसके कुछ पोर्शन सेंट्रल एशियन कंट्रीज में भी धीरे धीरे जाते हैं पामीर प्लेट्यू के पास। तो ये जो हिंदू कुश माउंटेन, ये बेसिकली आपका सिमेट्रिकल फोल्ड माउंटेन है। एक साइड और दूसरा साइड दोनों सिमिलर दिखता है। आपने माउंटेन्स देखे होंगे जिसमें कुछ माउंटेन्स होते हैं जो सिमेट्रिकल भी होते हैं, राइट। अगर आप माउंटेन का क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो कुछ इस तरह रहेगा, ये भी इधर का और इधर का दोनों सिमिलर, ये है सिमेट्रिकल फोल्ड। दूसरा होता है एसिमेट्रिकल फोल्ड। सिर्फ सिमेट्रिकल फोल्ड ऐसा टाइप ऑफ माउंटेन है जहाँ पे दोनों का कन्वर्जिंग करंट दोनों साइड से जो है ना, ये दोनों बराबर ही फोर्स लगाता है, तभी सिमेट्रिकल बन सकता है। बाकी जितने प्रकार के अब हम पढ़ेंगे ये सारे में इधर वाले जो करंट से कन्वर्ज कर रहे थे और इधर वाला जो कर रहा है, इसका फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, इसका फोर्स कम रहेगा। मेनली ये फोर्स के कम और ज़्यादा होने का मेन वजह यही होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ एंड डिफरेंट मटेरियल्स गेट्स हीटेड अप डिफरेंटली, right? So due to differential heating of materials, these converging currents are not able to get the same amount of pressure they like in the case we have here, okay? So ये थोड़ा तेज प्रेशर लगाएगा इधर और ये थोड़ा धीरे प्रेशर लगाएगा, जिसके कारण क्या होगा ना, इधर वाला जो पोर्शन रहेगा ना ये थोड़ा स्लैंट रहेगा और इधर वाला काफ़ी स्टीप हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो इसे हम कहते हैं एसिमेट्रिकल माउंटेन। सिमिलरली मोनोक्लिनल में क्या होता है, एक साइड का ज़्यादा प्रेशर लग गया और एक साइड से प्रेशर ही नहीं लग पाया, फिर बहुत कम लगा, जिसके कारण क्या होता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा, ये तो स्लोप होता है, ठीक है, ये स्लैंट होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्टीप होता है। यहाँ से आदमी कोई गिरेगा मतलब कि उसका बचना बिल्कुल ही मुश्किल है। तो जैसे कि हिंदू कुश हमने देखा, वैसे ही एसिमेट्रिकल माउंटेन में अरावली माउंटेन इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल, एंड मोनोक्लिनल में शिवालिक जो है हमारे इंडिया में, शिवालिक इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मोनोक्लिनल माउंटेन। ये काफ़ी ज़्यादा स्टीप होता है, ज़रूरी नहीं है कि 90 डिग्री हो, लेकिन बोला मैंने कि कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, तो मोस्टली परफेक्शन की ओर है, बट 90 डिग्री मेनली 90 डिग्री से थोड़ा सा ऐसा ही होता है। थर्ड है हमारा आइसोक्लिनल, ठीक है। आइसोक्लिनिकल माउंटेन्स में क्या होता है ना कि इधर का फोर्स कुछ ज़्यादा लग जाता है, कुछ इस तरह लग जाएगा कि थोड़ा सा हैंग करने लग जाएगा बाहर की ओर, ज़्यादा हैंग नहीं करेगा, थोड़ा सा हैंग करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई बारिश हो ना तो यहाँ पे थोड़ा सा खड़े होकर के ना वो मौज ले सकता है। हमारा चौथा है रिकम्बेंट फोल्ड। रिकम्बेंट फोल्ड में क्या होता है ना, ये बहुत ज़्यादा ही फोल्ड होकर के बहुत ज़्यादा ही आगे की ओर ये बढ़ जाता है। बेसिकली इतना ज़्यादा आगे बढ़ जाता है कि ये पूरा का पूरा जो नीचे का एरिया होता है ना, यहाँ पर रेन आना भी मुश्किल हो जाता है, यहाँ पे बारिश आना भी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो रिकम्बेंट फोल्ड एक नया टाइप है। और अगर यही रिकम्बेंट फोल्ड का ये वाला जो हैवी पोर्शन, ये वाला पोर्शन जब ज़मीन के पास आकर के गिर जाता है तो इसी को हम कहते हैं नेपीस, राइट। तो ये रहा हमारा बेसिक जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोल्ड माउंटेन्स। अब हम पढ़ेंगे ब्लॉक माउंटेन्स। देखिए यूपीएससी ने ना 2024 के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन दिया था जिसमें माउंटेन का नाम लिखा है, उसके प्लेस का नाम लिखा है और उसमें लिखा है ये ब्लॉक माउंटेन है, ये फॉल्ट, ये रिफ्ट, ये ब्लॉक माउंटेन है या फिर ये फोल्ड माउंटेन है, ऐसे करके ना 4 ऑप्शन दिए हुए थे और फिर लिखा था ओनली 1, ओनली 2 करके नीचे उसने अपने ऑप्शन बनाए हुए थे। तो इसीलिए ये ब्लॉक माउंटेन्स और फोल्ड माउंटेन्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। आपको मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि दुनिया में फोल्ड माउंटेन्स ज़्यादा है और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बट ऑल द मेजर माउंटेन सिस्टम्स इन द वर्ल्ड आर मेजरली फोल्ड माउंटेन्स, राइट। सो अब हम ब्लॉक माउंटेन पढ़ते हैं। ब्लॉक माउंटेन के बनने का मेन वजह टेंशन भी हो सकता है और कंप्रेशन भी हो सकता है। टेंशनल फोर्स कैसे लगता है, इस तरह लगता है, और कंप्रेशनल फोर्स कुछ इस तरह लगता है। ब्लॉक माउंटेन दोनों ही साइड से बन जाते हैं, ठीक है। ब्लॉक माउंटेन्स का मेजर एग्जांपल कौन कौन सा है, हुंसरुक माउंटेन्स एक है, एक वोस्जेस है, एक ब्लॉक फॉरेस्ट ऑफ राइनलैंड है।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है ब्लॉक माउंटेन्स के। तो ब्लॉक माउंटेन टेंशनल फोर्स की वजह कैसे बनता है, तो इसको पढ़ने के लिए ना एक डायग्राम देखिए अभी आप यहाँ पर होता क्या है ना, यहाँ से मैग्मा ऊपर उठ रहे हैं, मैग्मा ऊपर उठे, मैग्मा कूल डाउन होंगे, इधर की ओर मैग्मा जाने लग जाएंगे, और इधर की ओर जाने के बाद मैग्मा कूल डाउन होकर के नीचे जा रहे हैं। जब ये नीचे जा रहे हैं ना, तो ये एक फॉल्ट लाइन मान लीजिए, पहले से ही पृथ्वी पर सरफेस ऑफ अर्थ पर फॉल्ट लाइन एक बना हुआ है। इस फॉल्ट लाइन के होने की वजह से ये वाला जो ब्लॉक रहेगा ना, ये वाला जो ब्लॉक रहेगा उसको कुछ इस तरह खींचेगा ये, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मैग्मा का डायरेक्शन इधर है, राइट, टेंशन लग रहा है। तो ये वाले जो ब्लॉक रहेंगे ना, ये दोनों ब्लॉक, हालांकि इसका क्रॉस सेक्शन अगर आप इस अर्थ सरफेस पर इसका जो कटिंग है कुछ इस तरह है, तो ये इधर की ओर तो आ नहीं सकता है, राइट, ये हमेशा किधर इधर ही आने की कोशिश करेगा। तो इधर आने के चक्कर में ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन ये आपका इधर जाता है और ये वाला पोर्शन इधर आ जाता है, जिसकी वजह से कुछ इस तरह बन जाता है ये, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन बच गया ना आपका, इसी को हम कहते हैं ब्लॉक माउंटेन। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर मान लीजिए कि सिमिलर कुछ इस तरह से भी अगर रहता ना, यहाँ पे मान लीजिए कि कुछ इस तरह से होता, तो ये वाला जो पोर्शन बनता है ना, ये रिफ्ट वैली बन जाएगा आपका, दिस इज रिफ्ट वैली, ठीक। बट फॉर द टाइम बिंग मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहूँगा, तो आप यहाँ पर इतना याद रखिएगा कि ब्लॉक माउंटेन कुछ इस तरह से बन करके चालू होता तैयार हो जाएगा। यहाँ पर हुआ क्या, टेंशनल फोर्स लग गया था, दैट्स वाई ये ब्लॉक माउंटेन बन गया, राइट। और इधर वाला ब्लॉक जैसे कि आपने जाना है कि सबसाइड कर गया नीचे की ओर, क्यों, क्योंकि इधर की ओर फोर्स लग गया, टेंशनल फोर्स लग गया। अब ब्लॉक माउंटेन कंप्रेशन की वजह से कैसे बनते हैं, सेम फॉल्ट लाइन रहेंगे, आप देख लीजिए कुछ इसी तरह से अभी भी फॉल्ट लाइन है हमारे पास में, ठीक। अब फॉल्ट लाइन में होता क्या है ना, देखिए यहाँ पर जो कन्वेक्शनल करेंट्स है वो कुछ इस तरह से उठ रहे हैं ऊपर, मैग्मा ये मेंटल में कुछ इस तरह से उठ रहे हैं, और ये जा करके यहाँ पर कंप्रेस हो रहे हैं, ये कंप्रेशनल फोर्स लग रहा है यहाँ पे, और कुछ इस तरह से नीचे जा रहे हैं। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, ये जो आपका पोर्शन रहेगा ना, ये वाला जो पोर्शन रहेगा ना, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये बेसिकली ना ऊपर की ओर उठ जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पर आप फोर्स लगाते हैं तो ये नीचे तो नहीं आ सकता है, नीचे तो नहीं आ सकता है, ये क्या होगा, ऊपर की ओर उठेगा, ये बेसिकली ऊपर की ओर उठेगा। आप खुद सोच करके देखिए, अगर आप दोनों साइड से फोर्स लगाएंगे, अगर आप इधर से और इधर से दोनों साइड से फोर्स लगाते हैं, तो ये वाला जो है और ये वाला जो है ये ऊपर की ओर उठ जाएगा हल्का सा, क्योंकि इसका बनावट कुछ इस तरह से है, ये कुछ इस तरह से बनाया गया है, राइट, ये कुछ इस तरह से नहीं बनाया गया है। अगर इस तरह से बनाया गया था तो इधर वाले ब्लॉक को गिरा देता, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये आपका ऊपर की ओर उड़ जाएगा। वहीं यहाँ पर हुआ है, देखिए ये जो ब्लॉक्स है ना, ये ब्लॉक्स ऊपर राइज कर जाते हैं। क्यों राइज कर गए, क्योंकि यहाँ पर लग रहा था कंप्रेशनल फोर्स लगने की वजह से ये ब्लॉक ऊपर की ओर राइज हो गए, और राइज होने के बाद नीचे एक टाइप का वैली बना है, और इसी को हम रिफ्ट वैली भी कहते हैं। आपने देखा कि रिफ्ट वैली यहाँ पर भी बन रहा था, लेकिन यहाँ पर रिफ्ट वैली कैसे, मैंने बताया आपको, यहाँ पर बन रहा था। अगर दूसरा ब्लॉक भी अगर ऐसा रहता, ठीक है, तब रिफ्ट वैली बन जाता, लेकिन यहाँ पर एक प्योर रिफ्ट वैली आपको देख सकते हैं। यहाँ पे नर्मदा का वर्णन, नर्मदा भी कुछ इस तरह से ही बना है, ठीक है। तो ये जो रिफ्ट वैली, यहाँ पर कुछ टाइम बाद में सेडिमेंट्स हो जाएंगे, यहाँ पर रिवर्स अपना चलना चालू कर देती हैं, और रिवर वैली बन जाता है ये कुछ टाइम बाद में, ठीक है। देखिए अभी ये जो ब्लॉक है ना, ये ना ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आने के बाद कुछ टाइम बाद ये नीचे गिर जाएंगे, और यही हुआ कि ये ब्लॉक्स जो थे ये टूट करके ना कुछ इस तरह यहाँ पर आकर के इकट्ठा हो जाएंगे, और ये एक परफेक्ट रिफ्ट वैली आपका तैयार हो जाता है बन करके। तो ये रहा बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारा कंप्रेशन और टेंशन की वजह से ब्लॉक माउंटेन्स का बनना। अब हम देखते हैं, मैंने आपके लिए एक डायग्राम रखा था यहाँ पे, आप इस डायग्राम को बड़े ध्यान से देख लीजिए एक बात। देख पा रहे हैं, अब आप मेजर जो माउंटेन सिस्टम्स हैं अर्थ के,
मेजर माउंटेन सिस्टम्स में आप देख सकते हैं कि जितने भी बड़े बड़े माउंटेन सिस्टम्स हैं वो सारे फोल्ड माउंटेन हैं। और ये कहाँ कहाँ स्थित हैं? एक तो हमारा हो गया उराल, ये हिमालयस, ठीक है। तो एक तो हिमालय हो गया, जो दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी भी यहीं पर है, माउंट एवरेस्ट अपना। दूसरा हो गया हमारा उराल, जो कि रशिया और यूरोप को अलग करता है, ठीक है। हालांकि रशिया यहाँ पर भी है, लेकिन फिर भी दिस माउंटेन इज द फिजिकल बाउंड्री बिटवीन यूरोप एंड एशिया, राइट। एक है अपना कॉकेसस। कॉकेसस इज बेसिकली नियर टर्क एट द अबव ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ कैस्पियन सी कह सकते हैं हम, और ब्लैक और कैस्पियन सी के बीच में है। ये आपका रहा ब्लैक सी और ये रहा आपका कैस्पियन सी। एक है आपका एल्प्स, ठीक है। यहाँ पर है एटलास, ठीक है। यहाँ पर है अपना रॉकीज, कैलिफोर्निया के राइट साइड में रॉकीज पड़ता है। यहाँ पे अपना एप्लेंशियन माउंटेन हो गया, ठीक। और ये रहा हमारा साउथ अमेरिका का एंडीज माउंटेन, यहाँ पर अपना पेरू हो जाएगा, ठीक है। तो एंडीज भी एक बन गया। तो ये सारे ना आप देख पा रहे हैं कि ये सारे जो है ये फोल्ड माउंटेन्स हैं, राइट। एक सेकेंड, ये सारे हमारे फोल्ड माउंटेन्स हैं। अब मेन सवाल ये है कि यार ये फोल्ड माउंटेन्स इसी जगह पर क्यों बने हैं? तो आपको अभी की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि देखिए, हिमालयास यहाँ पर क्यों बना था, ये तो आपने सुना भी होगा कई बार कि हमारा जो इंडियन प्लेट है वो कुछ इस तरह मूव कर रहा है, इस तरफ मूव कर रहा है, और ये आकर के आपका जो ये यूरेशियन प्लेट था इससे हमारा इंडियन प्लेट टकराया, और उसके कारण से हिमालयास का फॉर्मेशन हुआ। सिमिलरली जो आपका रॉकीज है ना, यहाँ पर आपकी छोटे छोटे प्लेट्स हैं, और ये छोटे छोटे प्लेट्स ना सबसाइड कर रहे हैं नॉर्थ अमेरिकन प्लेट से। हालांकि नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का मूवमेंट बेसिकली इधर ही हो रहा है, इधर ही नॉर्थ अमेरिकन प्लेट का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये छोटे छोटे जो प्लेट्स हैं ना, ये इनके साथ सबसाइड कर जाते हैं, जिसकी वजह से रॉकीज का फॉर्मेशन होता है। रॉकीज के ऊपर बहुत मेजर मेजर वॉल्केनोज भी हैं। थर्ड है हमारा एंडीज। तो ये एंडीज में भी क्या होता है, यहाँ पर मेरे छोटे छोटे प्लेट्स हैं, तो दीज प्लेट्स आर कोलाइडिंग इनटू पेरू, तो जिसकी वजह से यहाँ पर एंडीज का फॉर्मेशन होता है। और मेजर वॉल्केनिक सिस्टम भी यहीं पर ही है। आपने रिंग ऑफ फायर सुना होगा। ये जो एरिया है, ये बेसिकली ये वाला जो एरिया होता है, ये रिंग ऑफ फायर का भी, इधर जापान वापान सब है, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट आर वोल्केनोज एंड हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोल्केनोज आर देयर, ठीक है। हम पूरे वोल्केनोज को अच्छे से रिवाइज करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, और जितने टाइप के वोल्केनोज है सारे उनका लोकेशन के साथ देखेंगे, और उनके फॉर्मेशन के पीछे का वजह क्या है ये भी जानेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।